Future of Pakistan. $1 million question. What is the future of Pakistan? Whether Pakistan will be a failed state, whether Pakistan will remain on the map of the world, whether every person is running away from Pakistan, and whether Pakistan has its own future or not, whether youth, young generation, they have some future in Pakistan or not. This is a very, kind of thought-provoking questions. Thought-provoking questions. Now, thought-provoking questions are those questions that you sit and you think over it, brainstorming, critical thinking, creativity, discussions, conversations, that what will happen, what's going to happen. So about Pakistan also, people, they are confused that what is the future of Pakistan and what is my future in Pakistan. So these are alarming questions. These are thought-provoking questions. And this is the topic of my today's lecture. Please make a comment that whether you are hopeful about the future of Pakistan or you are not hopeful about the future of Pakistan. So make a comment, I am hopeful about the future of Pakistan. Number 2, I am not hopeful about the future of Pakistan. Critical thinker will give some reasons, but there is no time, so just write, I am hopeful about the future, or I am not hopeful about the future of Pakistan. So Aisha is not hopeful. Sikandar Zeb is hopeful. Abdul Ghaffar is also hopeful. Saeed is not hopeful. I am hopeful. Eagle Mana. Sayyid Ahsan is also hopeful. Future of Pakistan. Waqar Khan. So most of you are hopeful, and that's a good sign. That is optimism. Now, Imran Khan is also hopeful. Most of you are hopeful. It's a good news for me. I am so happy that you are hopeful. Why we are hopeful? Because as Imran Khan has written, that there is a huge population, 250 million people. It is a huge population. So this population will go somewhere. And this population will take Pakistan to its success. Now, most of the population of Pakistan, that is youth. And youth is the future of Pakistan. And because of social media, because of modern education, because of the traveling of people, because of globalization, people are now interacting with each other, and we are not living in isolation. So the future of Pakistan, they are struggling to do something for their country. And many people, when they go abroad, they go to Australia, they go to New Zealand, they go to Canada, USA, Japan, Germany. I see them that they miss Pakistan because Pakistan has its own attraction. One, the huge population, a big market. Second, the hospitality and the love of people with each other, the relationships, the collective lifestyle, that is also beauty. Except the religious extremism, terrorism, and fundamentalism,
people like Tabligis and these people who do not let you to live your life. And if you are in Lahore, or you are in Karachi, DHA, you are in Bahria town, or you are in Islamabad, posh area, E7, F7. So life is great in Pakistan. If you have some money, you have business, you have a good job, and you are living in a posh area, in a area which is developed, and where Tabligis, they cannot knock at your door, or they don't force you to bring you to their discussions. So life is not that bad if we compare it to other countries. Pakistan is around 24th on GDP PPP. GDP PPP. Purchase power parity. I told you to read, please read Wikipedia article on Pakistan's economy. That is important. You must read it. Wikipedia, Pakistan economy. And you can read the whole article of Pakistan in Wikipedia. So Pakistan is around 24th on GDP PPP. There are so many types of GDP. Like we have GDP per product, nominal GDP, and PPP, purchase power parity. Purchase power parity. GDP का एक आसान PPP का आसान मिसाल ये है कि $1 में आप क्या कर सकते हैं. अगर आपकी जेब में $1 है तो ये डॉलर आपको क्या दे सकता है. ठीक है. अब $1 आपके पास अमेरिका में है तो $1 पे अमेरिका में आप छोटा सा चॉकलेट भी नहीं खरीद सकते. वही $1 अगर आपके पास पाकिस्तान में है तो ये तकरीबन 270, 80, 300 रुपये बन जाते हैं. तो 300 रुपयों में 2-3 रोटियां, कोई दाल माश, कोई चाय का प्याला, कोई पकोड़े, समोसे, काफ़ी चीज़ें मिल जाती है $1 में. सो दिस इज परचेज पावर पैरिटी, कि डॉलर में जो परचेज है, जो क़ुव्वत खरीद है, पैरिटी उसकी बराबरी क्या है. तो अमेरिका बहुत अच्छा मुल्क है बिकॉज वहाँ जीडीपी पर कैपिटा इज इम्प्रेसिव. जीडीपी पर कैपिटा, पर कैपिटा मीन्स कि हर बंदा कितना कमा रहा है. तो वहाँ अमेरिका में हर बंदा जो है वो काफ़ी पैसा कमाता है और हर बंदा वहाँ अमीर है, हर बंदा रिच है. गरीब होंगे थोड़े बहुत, कोई ड्रग नशई वगैरह या कोई नफ्सियाती बीमार. बाकी अमेरिका इज़ द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. वहाँ हर बंदा, मैंने लोग देखे, मैं अमेरिका कोई 50 दफ़ा गया हूँ, तो वहाँ लोगों को टाइम ही नहीं मिलता, इतना काम, इतना पैसा. तो वहाँ हर बंदा जो है वो कैपिटलिज्म की वजह से, सरमायादारा निज़ाम की वजह से उन्होंने बहुत खूबसूरत माहौल बनाया है और हर बंदा को कोई ना कोई काम मिल जाता है. वहाँ हर बंदा अमीर है, हर बंदा गरीब नहीं है. अब पाकिस्तान में जो है कोई बहुत अमीर है, कोई गरीब है, कोई दरमियान में है, लेकिन ओवरऑल चीज़ें सस्ती है. ठीक है ना. इतवार बाज़ार जाए, किसी गांव की दुकान जाए, तो वहाँ जो है आपको चीज़ें सस्ती मिलती है. मतलब 20,000 में भी लोगों की तनख्वाहें होती है 20,000, 25,000, 30,000. अब 30,000 क्या है? 30,000 जो है $100 भी नहीं है. अमेरिका में 1 घंटे के जो है आपको $20 मिलते हैं. तो $100 में आप पूरा महीना गुजारते हैं, लेकिन गुजारा हो जाता है, कोई भूख से नहीं मरता. वो ठीक है कि उसके पास कोई लेटेस्ट मॉडल गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी जो है वो गुजर जाती है. तो ये है परचेज पावर पैरिटी, PARITY. तो यूएसए जो है, अमेरिका मत कहे, यूएसए. ये अर्जेंटीना वगैरह जो बड़े माइंड करते हैं बिकॉज दे आर आल्सो अमेरिका. साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका. तो नॉर्थ अमेरिका में एक कंट्री है, उसका नाम है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. अब वो अमेरिका इतना मशहूर हो गया है कि बस यूएसए इतना मशहूर हो गया कि अब लोग पूरे अमेरिका को यूएसए कहते हैं या यूएसए को अमेरिका कहते हैं. तो लेकिन कंट्री का नाम क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएस या यूएसए.
नॉट अमेरिका। ये बहुत माइंड करते हैं बाकी लोग कि भाई हम भी अमेरिका है, हम क्यों अमेरिका नहीं कहते। नाउ दिस इज परचेज पावर पैरिटी, कि आपका परचेज पावर जो है, पैरिटी उसकी जो बराबरी है, जेंडर पैरिटी, पैरिटी का मतलब है पैर होना, बराबर होना। सो वो पाकिस्तान में ठीक है। यूथ है, पाकिस्तान इज नाउ नंबर 1 इन फ्री लांसिंग। फ्री लांसिंग जो है ऑनलाइन का जो कारोबार है, ब्लॉगिंग है, कंटेंट राइटिंग है, ये जो ऑनलाइन आप काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसमें पाकिस्तान जो है वो नंबर 1 है। पाकिस्तान इज नंबर 1 दिस ईयर ऑन टूरिज्म। लास्ट ईयर टूरिज्म में पाकिस्तान जो है वो भी नंबर 1 हो गया है। काफ़ी चीज़ों में पाकिस्तान जो है वो बेहतर है। यू नो, ऑन हैप्पीनेस इंडेक्स पाकिस्तान इज नॉट बैड, अराउंड 30। 200 ममालिक में पाकिस्तान तकरीबन 30, 31, 32 पे है हैप्पीनेस इंडेक्स में, कि पाकिस्तान के लोग जो है वो हैप्पी है, वो खुश रहते हैं। मतलब वो इतने उनको डिप्रेशन या बीमारियां है, लेकिन फिर भी ओवरऑल स्ट्रक्चर सोसाइटी की जो है वो इतनी बुरी नहीं है। There is a problem of population, and that problem is connected to environmental degradation, pollution, contamination, deforestation, desertification, कि हमारी जो है वो जंगल लोग काट रहे हैं, डिजर्ट्स बन रहे हैं, वाटर लॉगिंग जो है, ये जो पानी सीपेज करता है और वो कीचड़ सा बन जाता है जिसमें कुछ भी फिर क्रॉप वगैरह नहीं होते, वाटर लॉगिंग। सेलिनिटी, अल्कलिनिटी, हमारी ज़मीनी जो है उसमें एसिड्स आ रहे हैं, एसिडिटी, और अल्कलिनिटी वो अल्कलाइन होते जा रहे हैं। तो फिर इस तरह की ज़मीनों में आप फसल जो है वो काश्त नहीं कर सकते। नो कल्टिवेशन इज पॉसिबल। एंड देन you have other issues like the conversion of agricultural land into residential land। जो ज़री ज़मीनी है उस पर लोग घर बना रहे हैं, तो ये भी एक बड़ा इशू, ये भी पॉपुलेशन की वजह से है। लेकिन अभी यंग लोग जो है वो न शादियाँ करते हैं, न वो बच्चे पैदा करते हैं बहुत ज़्यादा। ये ट्रेंड जो है पाकिस्तान में अब चल पड़ा है कि जी 1-2 बच्चे बस। अब ये भी अजीब बात है कि जितने अमीर लोग होंगे उनके बच्चे कम है, जितने गरीब है उनके बच्चे ज़्यादा है। तो अमीर लोग जो है वो ज़्यादा बच्चे अब नहीं लाते। सो द पॉपुलेशन ट्रेंड इज आल्सो नाउ रिवर्सिंग, इट इज़ ऑलमोस्ट अंडर कंट्रोल, एंड एज मैनी पीपल आर बॉर्न, ऑलमोस्ट 2% अभी है, मुझे एग्जैक्ट स्टेटिस्टिक नहीं पता कि पाकिस्तान का भी बर्थ रेट क्या है। तो अगर वो 2.5 है या 2 है, इसका मतलब ये है कि अगर मतलब 2 बच्चे पैदा होते हैं तो मरते कम है और 2 बच्चे उसमें इजाफा होता है। बट देर इज अ ब्राइट फ्यूचर दैट पीपल दे विल बी प्लानिंग देयर फैमिलीज एंड दे विल बी नॉट हैविंग अनप्लान्ड फैमिलीज। घर जो है पाकिस्तान में अभी प्लान्ड बनने जा रहे हैं, कॉलोनीज, और ये जो अब वो गांव में जो भूल बलिया होती थी जिसमें ना गाड़ी जा सकती है, गंदी किस्म के नालियाँ वगैरह, तो लोगों में वो एहसास अब आने लगा है कि हमारा खूबसूरत घर हो, बाहर गली भी साफ़ हो, और कोई दरख्त भी लगे हो, कोई इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, कोई पौधे शौधे लगे हो, कोई मतलब वो जो एस्थेटिकल सेंस है, जमालियाती हिस्स है, ब्यूटी का सेंस लोगों में आ रहा है कि भाई हमारा इर्द गिर्द जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। So, because Pakistan is a very new country, it is just 74 years old, and there were so many challenges, especially security challenges. Pakistan, right from beginning, was facing the threat from India, and Afghanistan also never accepted Pakistan wholeheartedly, and that's why there are always clashes between Afghanistan and Pakistan and India. China is the only good friend. Iran also has problems. So the geostrategic position of Pakistan is challenging. पाकिस्तान जो है वो कोई आसान जगह पे दुनिया में नहीं बना। अगर हम कोई ऑस्ट्रेलिया में होते या किसी उसमें होते, कनाडा में होते या कोई यूरोप में होते, तो हो सकते इतने मसाइल ना होते, क्योंकि यूरोप में भी बड़े मसाइल थे। ये फ्रांस और जर्मनी और इंग्लैंड, ये तो एक दूसरे को ऐसे खाते थे कि पश्तून और पंजाबी की क्या दुश्मनी होगी। ये तो एक दूसरे को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। लेकिन अभी जो है उनका यूरोपियन यूनियन बन गया है।
तो ये जो है जो हमारी एरिया है, जो जहाँ पाकिस्तान वाक़ है, वो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड। वो आसान जगह नहीं है। अगर हम किसी अफ्रीका में होते या किसी उसमें होते, ऑस्ट्रेलिया में होते, तो ये मसाइल ना होते। सो दीज प्रॉब्लम्स आर आल्सो बिकॉज ऑफ द जीव स्ट्रेटेजिक position of Pakistan. And for all these things, we should have the tool of critical thinking. Instead of pessimism, instead of depression, instead of negativity, critical thinking. Critical thinking means that what is the problem and what is the solution. Problem hai, problem kya hai, what is the cause of the problem and what is the solution. क्रिटिकल थिंकिंग और ओवर थिंकिंग में ये फ़र्क है कि ओवर थिंकिंग में आप प्रॉब्लम पे बस सोच रहे हैं, जी मुझे CSS करना है, मुझे अंग्रेजी नहीं आती, तो मेरा पाकिस्तान अफेयर्स का क्या होगा, मैं तो बद तबाह हूँ, बर्बाद हूँ, मैं बदकिस्मत हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा, लोग बुरे हैं। तो ये आप थिंकिंग कर रहे हैं मुसलसल। क्रिटिकल थिंकिंग ये है कि यार मसला है, हम ये नहीं कहते कि मसला नहीं है, लेकिन ये मसला क्यों है और इसका हल क्या होगा। This is critical thinking. So critical thinking is basically positive thinking. It is not negative thinking. Overthinking is negative. वो नेगेटिव थिंकिंग है कि आप सिर्फ प्रॉब्लम्स पे थिंकिंग कर रहे हैं, सोल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे और कॉज ऑफ द प्रॉब्लम पे भी नहीं जा रहे। अगर आप स्टडी नहीं कर रहे हैं या आपका कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आपको काजेस का पता होना चाहिए कि यार मेरी फैमिली है या मेरे बच्चे हैं या जो है मेरे घर में बिजली नहीं है या इंटरनेट नहीं है या मेरे पास किताबें नहीं है या मैं टाइम ज़ाया करता हूँ या मैं जो है कोई एडिक्शन का शिकार हूँ, कोई नशा करता हूँ। तो काजेस पे सोचना कि मैं स्टडी क्यों नहीं करता, मेरी कंपनी ठीक नहीं है, तो ये आप क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हैं। फिर इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या होगा। सो दैट इज क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, जब आप सिंसियर होते हैं कि यार प्रॉब्लम है, मैं ये नहीं कहती कि प्रॉब्लम नहीं है, वो ओवर किस्म की, जो उसको कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी। टॉक्सिक पॉजिटिविटी कि एक बंदा बहुत पॉजिटिव होता है, बस जी सब ठीक है, हो जाएगा जी, बेफिक्र रहे, कुछ नहीं, मैं CSS क्या है यार, बस आप डॉन अखबार पढ़ो, बस 2-3 किताबें पढ़ो, कुछ इतना परेशान नहीं होना। तो वो टॉक्सिक पॉजिटिविटी है। वो बंदा आपको तसल्ली दे रहा है लेकिन आपको गलत रास्ते पे डाल रहा है। सो नो टॉक्सिक पॉजिटिविटी, वो पॉइजनस है। बातें बड़ी मीठी है, बड़ी प्यारी है, लेकिन ये मसले का हल नहीं है। ठीक है, तो उसको कहते हैं टॉक्सिक पॉजिटिविटी। कुछ लोग बहुत पॉजिटिव होते हैं, बड़ी मीठी होते हैं, लेकिन वो बड़ी फजूल लोग होते हैं। वो आपको रियलिटी नहीं दिखाते कि भाई रियलिटी क्या है। जो क्रिटिकल थिंकर्स होते हैं वो आपको कहते हैं कि जी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम का कॉज क्या है और इसका इफेक्ट क्या होगा, सोल्यूशन क्या है। आइए सोल्यूशन पे सोचते हैं, काज पे भी सोचते हैं और सोल्यूशन पे भी सोचते हैं कि मसला क्यों है और मसले का हल क्या है। सो दिस इज अ क्रिटिकल थिंकिंग। तो आज के नोट्स जो मैंने आपको दिए हैं, प्लीज़ उसको पढ़े, बड़े प्यारे नोट्स है। उसमें पाकिस्तान के बारे में बड़ी अच्छी अच्छी किताबें भी मैंने उसमें लिखी है, बड़ी खूबसूरत किताबें, उसमें से कुछ काफ़ी मैंने पढ़ी भी है। तो वो किताबें पढ़े, पाकिस्तान के बारे में आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा। पाकिस्तान को चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान को चैलेंजेस नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है। पाकिस्तान का फ्यूचर जो है वो डार्क नहीं है। पाकिस्तान कभी भी कोलैप्स नहीं होगा। पाकिस्तान जो है वो बैंकरप्ट नहीं होगा, दिवालिया नहीं होगा। क्योंकि एक तो आर्मी जो है, जिस तरह भी लोग आपको आर्मी अच्छी लगती है, बुरी लगती है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी है स्ट्रांग। बांग्लादेश का ताना हमें मिलता है, तो 71 में जब बांग्लादेश बन गया तो एक बंदे ने लिखा कि जी मैं इस पे हैरान नहीं हूं कि 71 में बांग्लादेश क्यों बना, मैं हैरान इस पे हूं कि 47 से 71 तक ये चला कैसे। ठीक है ना, वो एक अननेचुरल किस्म की चीज थी कि जी दरमियान में इंडिया है, 1000 माइल जो है वो दरमियान में फासिला है, उधर बैठे हैं, हम इधर बैठे हैं, और जी हम कहेंगे हम एक मुल्क होंगे। तो वो एक इलॉजिकल किस्म की चीज़ थी कि बांग्लादेश को अपने पाकिस्तान के साथ इकट्ठा करके चलाना है। तो उसका अलहदा होना जो है वो कोई इतनी बड़ी सरप्राइज नहीं है। अभी जो पाकिस्तान है, जिस तरह के पाकिस्तान का जो जियोग्राफी है,
ठीक है, तो इंडिया ने भी पाकिस्तान को मान लिया है कि ये एक कंट्री है, यूनाइटेड नेशंस भी उसको माना हुआ है कि ये एक कंट्री है। और हमारी आर्मी जो है वो जिस तरह भी है, और ISI है, एजेंसीज है, जो भी है, वो पाकिस्तान को कभी भी टूटने नहीं देंगे। पॉलिटिक्स में आगे पीछे ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन ये वो हद से ज़्यादा सिंसियर है इस मुल्क के साथ। और सिंसियर क्यों नहीं होंगे, उनके बड़े फैसिलिटीज़ भी है, कैंटोनमेंट्स में रहते हैं, बड़े बड़े उनके तनख्वाही है, उनके पास फैसिलिटीज़ है, सब कुछ है। तो क्यों वो पाकिस्तान के साथ वो बंदा सिंसियर होगा जिसका पाकिस्तान में फ्यूचर है। तो पाकिस्तान का फ्यूचर किसका है? आर्मी का है, ब्यूरोक्रेसी का है, जुडिशरी का है, बिजनेस पर्सनस का है, फैक्ट्रीज का है, मार्केट्स का है। तो जिसका कुछ न कुछ पाकिस्तान में है, जमींदारों का है, जिसका ज़मीन है, जिसका फैक्ट्री है, तो वो क्यों पाकिस्तान की बुराई चाहेगा? So this is the point that you have to keep in mind. And democracy, it will take time. अब अमेरिका का हिस्ट्री पढ़े, सिविल वार पढ़े, उनके दरमियान कितना उसने एक दूसरे को मारा हुआ है। और सिविल वार था किस पॉइंट पे कि जी स्लेवरी हो या स्लेवरी ना हो। ठीक है, साउथ वाले कह रहे हमें स्लेव्स की जरूरत है, नॉर्थ कह रहे हैं हमें स्लेव की जरूरत नहीं है। उसमें इन्होंने अपने आप को ऐसा लताड़ा कि अब अमेरिका इतना बड़ा सुपर पावर बन गया अपनी इतनी प्रॉब्लम्स के बावजूद। अब इंडिया देखो, इंडिया की प्रॉब्लम हमसे 100 टाइम्स ज्यादा है। पॉवर्टी उधर ज्यादा है, काफी उधर रिलीजन्स भी है, सेक्ट्स भी है, एथनिसिटीज भी है, और इतना बड़ा मुल्क भी है, प्लस बिलियन उनकी आबादी है। तो उन्होंने अपने मुल्क को कैसे कटा रखा है? हमसे ज्यादा उनके फॉल्ट लाइंस है, इसको फॉल्ट लाइंस कहते हैं, जिसपे कंट्री कलेप्स हो जाता है। तो पाकिस्तान से वहाँ लैंग्वेजेस भी ज़्यादा है, और रिलीजन्स भी ज़्यादा है, गुर्बत भी ज़्यादा है, और उनके मसाइल भी ज़्यादा है। अब जो नॉर्थ का इंडिया है वो साउथ की इंडिया से बिल्कुल उनकी नहीं लगती। ये बलोच और पंजाबी का और पश्तून का जो हमारा दुश्मनी है वो अब भूल जाएंगे। साउथ वाले जो है वो हिंदी बोलते नहीं है, पाकिस्तान में फिर भी लोग उर्दू तो बोलते हैं। साउथ की जो उनके है तमिलनाडु वगैरह, वो कहते हैं हिंदी में हमसे बात ना करें। तो ये वहाँ जो नफरत है वो इतना नहीं। और फिर मुसलमान और हिंदू और क्रिश्चियंस और हिंदुत्व, और ये कितने उनके बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है ईस्ट में, असम में। और ये सिख का देखो, सिख खालिस्तान का कितना बड़ा चैलेंज है इंडिया को। सिख जो है वो इंडिया को इतना नहीं चाहते, वो अपना अलहदा वो बनाना चाहते हैं। तो अगर इंडिया इतने चैलेंजेस का बावजूद आगे जा रहा है तो पाकिस्तान क्यों नहीं जाएगा? So these are some of the thoughts, because today this is my last lecture in this group. I have given you notes on all the topics that I announced. Today we finished Pakistan affairs and basic English. So next time we will be starting advanced English and some other subjects, and LPCS also. So please stay tuned. And I have given you a lot of theory. मैंने इन दिनों बड़ी आपको थियरी भी दी, आपको नोट्स भी दिए। आप उसको एब्जॉर्ब करना शुरू करें और फिर उस पर राइटिंग और एक्सप्रेशन करना शुरू करें। दैट इज इंपॉर्टेंट। सिख का स्पेलिंग जो है SIKH है, SIKH। ये दूसरा सिख जो है इसका मतलब है बीमार। सर, आई वुड लाइक टू नो हाउ डू यू मैनेज to balance your daily routine, job pressure, and the time you devote to us. Actually, I believe in decentralization. अभी मैं लाहौर जा रहा हूँ, आज मेरी फ़्लाइट है, रात को कतर में जाऊँगा, कतर में 1-2 दिन में होऊंगा, फिर मैं लाहौर जाऊँगा। और पाकिस्तान की जितनी एम्बेसीज है उसमें मेरी एम्बेसी जो है वो नंबर 2 है। हालांकि मैं भी अभी आया हूँ और छोटी सी एम्बेसी है, लेकिन हमने इसको नंबर 2 कर दिया ग्लोबली, क्योंकि मैं डिसेंट्रलाइज करता हूँ, अपने लोगों को कहता हूँ भाई काम करो, लीडरशिप रोल मैं प्ले करता हूँ, लोगों पे ट्रस्ट करता हूँ, फिर वो लोग मेरे लिए काम करते हैं, मैं उनको गाइड करता हूँ कि ये करो ये करो ये करो ये करो। मैं हर काम खुद नहीं करता कि एक एक चीज़ को मैं खुद ही करूँ, नहीं, फिर आप कहाँ कहाँ पहुँचोगे। एंड अनदर थिंग विच इज़ हाईली इंपॉर्टेंट, दैट इज़ टू क्रिएट टाइम। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ टाइम, वन इज़ रियल टाइम एंड द अदर इज़ क्लॉक टाइम। टाइम 2 किस्म की है।
क्लॉक टाइम ये है कि आपके पास 24 घंटे है, 7 बजे है, 8 बजे है, तो ये सारा जो है ये क्लॉक टाइम है। तो 24 घंटे रहेंगे, 7 बजे 7 बजे रहेंगे, 7 से लेकर 8 बजे तक 1 घंटा है, ये इसको आप चेंज नहीं कर सकते। क्लॉक टाइम कम्स फ्रॉम नेचर, ये आपकी मजबूरी है। नाउ क्रिएट टाइम मीन्स के 7 से लेकर 8 बजे तक 1 घंटा जो है उसमें आप कितना काम कर सकते हैं, दैट इज क्रिएटिंग टाइम, दैट इज स्मार्ट वर्क। 1 घंटे में एक बंदा जो है वो एक पैराग्राफ लिखेगा, दूसरा बंदा 1 घंटे में जो है वो 10 पैराग्राफ लिखेगा। तो 10 पैराग्राफ वाले ने 10 घंटों का काम 1 घंटे में कर दिया, तो उसने 9 घंटे क्रिएट किए। तो मैं छोटे टाइम में ज्यादा काम करता हूं। दिस इज वन ऑफ द सीक्रेट। Racist trait of human is evolutionary. There are some biological things, I don't know exactly, I did not do research on this topic, but what I can guess, मेरा गेस ये है कि हमारी नेचर में काफ़ी चीज़ें हैं, एंड दैट्स वाई वी नीड लॉ। लॉ की इसलिए ज़रूरत है, ठीक है ना। मर्द है तो मर्द की जो हार्मोन्स है वो तो हर लड़की हर औरत को पकड़ेगा, उस पर चढ़ेगा, तो क्या कानून इसको करने देगा? ये वो भी हमारे नेचर में है। हमारे नेचर में खाना है, तो जो भी हमें खाना मिले रेस्टोरेंट में, बेकरी में, और हम जाके उस पर जी जी मेरे नेचर में है खाना खाना, भूख मुझे लगी है तो मैंने आपका खाना खाना है, तो इस तरह तो फिर ये सोसाइटी तबाह हो जाएगी। तो दैट्स वाई वी नीड स्टेट एंड वी नीड पुलिस एंड वी नीड लॉ। इस वजह से हमें लॉ की ज़रूरत है। तो अगर रेसिज्म जो है वो हमारे ब्लड में भी है, लेकिन उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट डू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। लिबरलिज्म आपको ये कहता है आज़ादी, कि भाई आप आज़ाद है, लेकिन आपकी आज़ादी आपकी नाक के साथ ख़त्म हो जाती है, क्योंकि वहाँ से किसी और की आज़ादी शुरू हो जाती है। तो आपने अपने आप को कंट्रोल में रखना है। रेशनल होना, लिबरल होना, सेकुलर होना, मॉडर्न होने के मतलब ये नहीं है कि तुम हमारी मर्जी है जो भी आप करना चाहे करे, नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा पाबंद हो। इस वजह से मॉरलिटी जो है, एथिक्स जो है या लॉ जो है वो वेस्ट में ईस्ट से ज़्यादा है। मुसलमान मुल्कों से ज़्यादा अखलाक जो है वो काफिर मुल्कों में है, क्योंकि वहाँ कानून की हुक्मरानी है। तो अगर रेसिज्म जो है आपकी खून में भी है या आपकी जीन्स में है, लेकिन उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। प्लीज आस्क पर्सनल क्वेश्चंस पर्सनली, ठीक है। पर्सनल क्वेश्चन जो है वो अब हम पर्सनल लेवल पे करते हैं। पब्लिक क्वेश्चंस, एकेडमिक क्वेश्चंस, वी डू इट पब्लिकली। सो फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यस, कि आप जो है आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो के साथ साथ अपनी फ्री होना है। लॉ इज कंट्रोल, लॉ जो है आपको कंट्रोल करता है। क्राइम मैटर्स, जुर्म कभी ना करे। बाकी गुनाह है, ये है वो है, तो आपका खुदा या जो भी आपका मजहब है वो वाली कहानी है। क्राइम आपको माफ नहीं होता। हाँ, स्पाल जो है वो रियलिटी है, तो स्पाल को आप चैलेंज नहीं कर सकते। साइंस, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, आर्ट एंड लॉ, ठीक है। साइंस को बंदा कैसे चैलेंज करेगा? जी मैं न्यूटन को नहीं मानता, मैं आइंस्टाइन को नहीं मानता, ये कोई कह सकता है? ये आज़ादी आपको नहीं है। मैं जी अरिस्टोटल को नहीं मानता, क्यों नहीं मानते? अरिस्टोटल आपको लॉजिक सिखाता है और आप कहते जी मैं नहीं मानता। सो दैट इज आइदर स्टूपिडिटी और दैट इज सिकनेस, मेंटल सिकनेस। सामने सामने होता है, मैं नहीं मानता, बच्चों की तरह, तो उसका बंदा क्या करेगा? मैं नहीं मानता कि 2 जमा 2 = 4 है, मैं कहता हूं जी 2 जमा 2 = 15 है, मैं कहता हूं, तो उसका फिर कोई इलाज नहीं है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, प्लीज रीड द नोट्स बोथ फॉर English and Pakistan affairs.